Yeah, good afternoon. Sir, can I, अगर 2 minutes सर wait कर सके, 2-3 more people expected to join, sir. I was just going to. Okay. So Thank just you, let sir. me know Thanks. if everyone joins. Yeah, sure, sir. I'll let you know, sir. Thank you. Thanks a ton, sir. Thanks. वो शॉट पे कर ला Hello. Good evening. Hello. Yeah. Very good afternoon to all of you. May I invite Chairman Sir to kindly join us. Good afternoon, Good friends. afternoon to Good all afternoon. of you. It's been a real pleasure and honor welcoming Chairman Sir back to this press conference. And it's been indeed a pleasure to have all of you back on the board again. There were lots of requests coming in to meet the Chairman Sir personally, but he was very busy, and to confess, it is only I know and Sir would know how we have managed to steal this little time out. He was busy with just a minute before with very important meeting and busy after this. I literally pushed him to this meeting and he accepted it. Sir, thank you for accepting it, the request, sir. It's been indeed an honor. Without taking much time, may I request Chairman, sir, to kindly start the proceedings for the day, sir. We'll be having questions after that. Thank you, sir. Thanks. Good afternoon, friends. It has been always very delightful experience to meet all of you, and thank you very much for accepting our invitation at a very short notice and joining us here today. I'm going to give you the details of the latest initiatives of Indian Railways. And the first important thing is that freight loading has really recovered. And if you see this slide, it clearly indicates that while there was a negative growth between April, May, June, July, we started recovering from August. Silent mobile, please. August there was only 4% growth. September 15% growth, and October we have been able to maintain 15% of growth. Sir, and if you see the table, you will just notice. All may kindly mute the mobiles, please, so that sir can speak. Please mute all of you except sir. Thank you, sir. Sir, please. If you see the table, you will notice that all the commodities, the freight loading has grown as compared to the last year. So that's a very, very positive indication. In spite of this challenging situation due to global pandemic, Indian economy is reviving and freight loading is increasing.
सब अभी लेकिन While there is a growth of 15% in freight loading, इसमें दो हम आराम से दे सकते if you हैं. see the next slide, Kundan Singh, kindly switch off, mute your दोस्त mobile, मेरी बात please. दे दें. Kundan Singh, Gaurav Khosla, please mute your mobile. ज्यादा है नहीं, 6 लोग हैं. ठीक है. Sunil Pandey ji, mute your mobile, please. आराम से 2 नंबर रखता है. बिहार में 6 नंबर भी रखता है. Kundan ji, mute your mobile. Sunil Pandey, mute your mobile. Khosla ji, mute your mobile. Thank you, please. Thank you. Sorry, sir. yeah, okay. Thank you very much. So I think I request all of you to please mute your mic so that everybody can listen. So basically, the point which I was making that while there is a growth of 15% in freight loading, we have been able to get 9% growth in revenue. Next slide. It basically indicates that there is a incremental loading of 14.32 million ton over October 19, 9% revenue growth, which convert into 869 crore more than the last year. And automobile sector, there is lot of growth. If you see the figure, there is 97.5% increase, which is almost doubled. Kisan Rail has really picked up very well, and as per the requirement, from wherever we are getting the requirement, we are running the Kisan Rail and successful. As I mentioned you earlier, we have set up the business development activities, business development units in every division and zonal headquarter. Next slide. And we have launched a freight business development portal. We are continuously upgrading this portal, and through this portal we are going to communicate with all the stakeholders, and gradually we are moving towards a portal where every stakeholder will be able to communicate with this portal for all types of approval, for all types of information, for all types of suggestions. So this is something we are still working on it. We have already launched, but we are continuously improving this portal based on the suggestions received from stakeholders. And this is certainly going to give a further push in freight loading. Next slide. As you are aware, the corona situation still continues. We are constantly monitoring. We are in close touch with the state government. We are keeping a close coordination. And in consultation with the state governments, we have been running special passenger trains. We have started running Kolkata metro trains, 200 services, 2276 Mumbai suburban services are being operated, and we are in touch with the state governments, and as per requirement, railway is ready to increase the number of services in Mumbai, number of services in metro Kolkata. The main objective of running these trains that we need to facilitate passengers to move from one place to another place. At the same time, we want that everybody should be safe, and we want that every traveler, every passenger should follow the COVID protocols. They should maintain social distancing, they should wear mask, they should keep on sanitizing their hands. So with all these protocols, railway is committed to increase the rail services, whether it is suburban services in Mumbai or any other state, or the long distance trains, more and more trains as per the requirement. As I mentioned earlier, we have introduced the concept of clone train, and wherever we are finding that waiting list is going beyond certain threshold, we are immediately introducing clone trains. For the first festival season, we have already announced 436 trains, and we are continuously monitoring. And through you, I want to inform everyone that due to COVID situation, we don't want to run unreserved trains.
we want to run reserved trains, and on a daily basis we are monitoring the waiting list, and through you I want to assure everyone that railway will keep on introducing more and more festival trains so that everyone gets the confirmed ticket. And my request to all the citizens of the country through you, that they should come to the railway station with the reserved confirmed ticket only. Railway will not allow unreserved trains due to this COVID situation. We want everyone to be safe, and we are monitoring closely. And as and when in any train the confirmed seats are not available, we are going to introduce more and more trains. And just to give you an idea, the trains which we are running, 736 trains, and even the festival trains, 436. While the overall occupancy is around 92.94%, overall occupancy for last 1 week, if you see the overall occupancy, 92. But this occupancy is very staggered. There are 19 trains where the occupancy is below 30%. Then there are 44 trains where the occupancy is only 30 to 50%. There are 83 trains, the occupancy is only 50 to 75%. There are only 327 trains where there are waiting lists, and these are the 327 trains we are monitoring on daily basis, and we are introducing clone trains wherever, and we will be introducing more and more festival special trains on those routes where the reservation is not available or waiting list is there. So I want to assure each and every citizen of the country that during this festival season, Railway is fully committed to provide reserved accommodation to each and everyone, and for this we are monitoring the waiting list position almost on a real-time basis, and we are introducing new special trains, festival special or clone trains, almost on daily basis. So that is a message I just wanted to convey to you, to all our citizens. Another very important project I just wanted to brief you about Daboi Chandod Kevadia railway project. And this railway project is going to connect to statue of Sardar Vallabhbhai Patel ji, and the work is progressing very well, and this will basically connect from Baroda to Kevadia, and this line is going to be commissioned by December 2020. Next 2 months this line will be commissioned, and then we will be running trains from Baroda to Kevadia. The next slide. These are some of the features of this Daboi Chandod Kevadia rail project. This project will be commissioned in December 2020. This includes 18-kilometer gauge conversion project that is between Daboi and Chandod, and there is a new line project from Chandod to Kevadia. Now I just want to mention that the entire land, 100% land for this project has been acquired. Track work has already been completed between Daboi and Chandod, and Chandod Kevadia, the track work will be completed by 15th of November. All 3 major and 16 minor bridges between Daboi Chandod has been completed, and even between Chandod and Kevadia, the work on major bridges and minor bridges are progressing very well, and this line will be completed by December 2020. Now I just want to show you some of the photographs. The Kevadia railway station will look like this. The left side is the plan, artistic view, how the final station will look like, and right side is the present status of the station building. You can see the complete structure of the station building has already come up, and before December 2020, what you are looking at right side, it will look like you are looking at the left side. Similarly, the Daboi station building, again left side is the artistic impression and right side is the present status. You can see that the structure has already.
and very soon this station building will be commissioned. Now, Mumbai Ahmedabad bullet train, we have discussed this project earlier also, and I'm very happy to inform you that Gujarat, we have already acquired 86% of the land, and in next 1 month, the level in Gujarat will reach 95%, and therefore we have awarded the contract of 237 kilometer between Vapi and which is 47% of 508 kilometer. This contract has been recently awarded at the cost of 24,985 crore, and the 4 stations which is covered by this stretch is Vapi, Bilmora, Surat and Bharuch. The balance area in Gujarat, the Gujarat is also under process and will be awarded very soon, and thus the entire stretch in Gujarat, the contract will be available and the work will physically start. Maharashtra, the land acquisition is only 22%. We had a detailed meeting with the state government authorities, and they have assured that the land acquisition in Maharashtra will also be expedited, and based on the final status of the land acquisition, we will be processing the contract for stretch in Maharashtra also. Now, this work is certainly going to create lot of employment generation, the boost in demand of construction material and machinery, and the most important thing is that these contracts are being executed by Indian contractor, and there will be lot of skill development for developing the skill for Indian people to be able to construct high speed project for this project and also for the future project. So that is a very, very important thing, and technology transfer to Indian companies and Indian institutions is integral part of this memorandum of understanding with Japanese authorities. So this project has taken shape. The physical work is going to start in this month only, and this project will progress. As I had mentioned earlier, all the designs and drawings of the entire Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor has been finalized. The contract for Gujarat stretch is in place, and we are closely monitoring, closely coordinating with Maharashtra state government, and as the land acquisition progresses, we will be processing the contract for the stretch in Maharashtra also. So thank you very much. These are the details which I wanted to give you, and I'll be very happy to answer your questions, and it is always a pleasure to interact with all of you. Thank you so much. Thank you, sir. It's been a pleasure and joy listening to you as always, sir. And now I request our esteemed media persons to come one by one. Kindly, the rest of the persons may keep their mobiles on a muted mode. The first one is Mr. Vinod Shrivastava from Rashtriya Sahara. The questions are being taken in the queue that they've come in, to be fair to all. Mr. Vinod, Rashtriya Sahara, you there? Mr. Vinod, Rashtriya Sahara, are you there? Mr. Vinod? Okay. The next question is then Anu Sharma from CNBC. Anu Sharma? Hi, sir. Hi, sir. Yeah, you kindly start with the question, yeah. So I wanted to ask, what is the latest update regarding the services of food and bedroll across the trains that are running as of now? For long distance trains specifically. Repeat the question. Sir, her question is what is the latest Sir, I wanted update? to ask. Yeah, Mr. Narayan. What is the latest update on food and bedroll services in long distance trains? Food and bedroll services in long distance trains. We are not providing food and bedroll services in long distance trains as of now during the COVID period, and yet we have to take a final decision. But based on the experience, what we get during the COVID,
But as of now, we are not providing food and bedroll services. What we are providing ready-to-eat meal, and stations have been allowed to run their own restaurants and canteens. So food can be provided by that station canteens. Then we will be allowing also e-catering, so that through e-catering food can be obtained. So as of now, we are not providing bedroll and food. Hello? थैंक यू अनु. विनोद, आर यू देयर? विनोद जी राष्ट्रीय सहारा, यू देयर? मैं आपका प्रश्न पूछ लूं. सर वैसे आपने इनका प्रश्न आंसर दे ही दिया है. इनका प्रश्न था मौजूदा ट्रेनों में कितने प्रतिशत बुकिंग चल रही है, ये बता दिया लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए किन किन राज्यों में. ये मैंने बता दिया जी सर, ये लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए किन किन राज्यों ने पहल की है, इसका बता. मुंबई में ऑलरेडी चल रही है. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी पहले रिक्वेस्ट आई थी, फिर हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा था कि हम चलाने के लिए तैयार हैं, और उनसे हम उनके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे. आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग चल रही है, और मॉडलिटीज जब फाइनल होंगी स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे के बीच में, रेलवे हमेशा से तैयार रही है ट्रेन चलाने के लिए, और हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पहले भी ये सूचित किया था कि रेलवे ट्रेन चलाने के लिए तैयार है. केवल कोविड की सिचुएशन देखते हुए एक मॉडलिटीज बना के रखना पड़ेगा को, और रेलवे को ज्वाइंटली ये करना पड़ेगा कि कोविड प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो किए जाए, ताकि लोगों की जो हेल्थ इश्यूज है उसको हम टैकल कर पाए. हेलो जी हाँ श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज, मैंने आपका प्रश्न पूछ लिया. श्रीवास्तव जी, मैंने आपका प्रश्न पूछ लिया. और विनोद जी और जानना चाहते हैं कुछ? तमिलनाडु सरकार से भी सूचना मिली है, और तमिलनाडु सरकार से भी एक कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, और हमने तमिलनाडु सरकार को भी बताया है कि हम सबअर्बन ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं, और एक मॉडलिटीज तय करनी है. अगला प्रश्न अरुण कुमार दास. विनोद जी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है. कट के आ रही है. हाँ आइए, प्लीज प्रोसीड. विनोद जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. मेरा ये पूछना था सर, जो इस ट्रेनें हैं, नमस्कार सर, जो वेटिंग लिस्ट हो गई हैं 327 ट्रेनें. हाँ. नमस्कार. हेलो आवाज, प्लीज प्रोसीड. हाँ, मैं ये कह रहा था जो 327 ट्रेनें वेटिंग लिस्ट हो गई है, कितनी ट्रेनों का प्लान कर रहा है चलाने के लिए फेस्टिव सीजन में? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा कि पहले बताया था कि जो ट्रेनें वेटिंग लिस्ट में है वो हम एक पूरा एनालाइज कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि आज वेटिंग लिस्ट है और 2-3 दिन के बाद सीट मिल रही है तो उसको देख के ट्रेनें चलाते हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वेटिंग लिस्ट में ट्रेनें आ रही हैं और वो कितने दिन वेटिंग लिस्ट है और क्या वेटिंग लिस्ट का पैटर्न है, एक क्रिस सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, और ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि कब ट्रेनें किस सेक्शन में कितनी इंट्रोड्यूस करनी है. और हमारा पूरा प्रयास है कि डेली बेसिस पे मॉनिटर करके जिस सेक्शन में ट्रेनें वेटिंग लिस्ट में आ रही हैं उसमें हम कंफर्म टिकट लोगों को दे पाएं, जिसके लिए कि अगर हमको लगता है कि कुछ दिनों के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है तो कुछ दिनों के लिए क्लोन ट्रेन चलाते हैं. कहीं पे अगर ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल रश है तो उस सेक्शन में हम फेस्टिवल ट्रेन एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये हमारा पूरा प्रयास है. इन सेक्शन में वेटिंग लिस्ट आ रही है उसको पूरी तरह से एनालाइज करके हम उस पर एडिशनल ट्रेन इंट्रोड्यूस कर पाए. मतलब ये है कि फेस्टिवल में हम और ट्रेनें चलाने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार हैं. हम फेस्टिवल में डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, और फेस्टिवल में हम बिल्कुल एडिशनल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं. और जैसा कि आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे हम मॉनिटर करके और नई ट्रेनें हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं. और हमारा उद्देश्य यही है कि सबको एक फेस्टिवल सीजन में ट्रेवल करने के लिए कंफर्म रिजर्वेशन मिल जाए. और हम ये चाहते हैं कि ये जो चैलेंजिंग टाइम है कोविड का, उसमें सब लोग अच्छे से ट्रेवल करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रिजर्व्ड बर्थ पे वो लोग ट्रेवल कर पाए. ये हमारा प्रयास है. सर एक प्रश्न
जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया है, पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने भी वर्ड इस्तेमाल किया, पहले पूछे ले रहा हूं उनकी तरफ से कि सुनने में आया कि रेलवे बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है अपने ऑपरेशंस में। इसके बारे में सर थोड़ा सा बता दें। ऐसा है कि रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि एक हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैदराबाद में सेटअप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए, और उसके लिए हमने आईएसबी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। आईएसबी के साथ मिलके साउथ सेंट्रल रेलवे सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टेब्लिश करेगा डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। दूसरी चीज ये है कि हमने 88 रेलवे ऑफिसर्स की पिछले 2 महीने का एक मॉड्यूल के लिए ट्रेनिंग की थी। 2 महीने का मॉड्यूल था, और डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक बहुत बड़े पैमाने पे जाना चाहते हैं। हमने सारे जोनल रेलवे और डिवीजन को ये निर्देश दिए हैं कि सारे जोन और डिवीजन में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका ये काम होगा कि वो देखेंगे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है टिक्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो पूरे भारतीय रेल में समयबद्ध तरीके से चले। जहां तक डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, हमारे पास रेलवे के पास पैसेंजर रिलेटेड बहुत डाटा है, ट्रेन ऑपरेशन रिलेटेड बहुत डेटा है, फ्रेट ऑपरेशन रिलेटेड बहुत सारे डेटा हैं, और इवन जो हम एसेट मेंटेन करते हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत डेटा है। इन सब डेटा को एनालाइज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके हम ट्रेन ऑपरेशन, फ्रेट ऑपरेशन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, नई ट्रेनों का इंट्रोडक्शन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के डेटा को एनालाइज करके और अपने एसेट मेंटेनेंस को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की तरह लेके जाने के लिए एक व्यापक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स को यूज करने के लिए उस तरफ हमारा ये प्रयास कर रहे हैं, और जिसके लिए कि हमने ऑलरेडी अपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम बना रहे हैं हैदराबाद में, और हमने 88 ऑफिसर्स को 2 महीने की ऑलरेडी ट्रेनिंग दी है, और आने वाले कुछ दिनों में हर जोन से, हर डिवीजन से कुछ अधिकारी नामित करके उन सबको ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू सर। दैट्स Arun Kumar Das. Yeah. Gaurav from Z Business. क्या गौरव जी, नमस्कार। Sorry. Gaurav, you don't ask questions like this, jumping this thing. Questions are being asked. You please send the questions to me, and there's a queue. I had already sent to yeah, you. please. Yeah, please send the question. Already Please. sent to you, sir. No. I had already sent to you, I'll ask you to come in. You have sent it now. Okay, sir. Please. Yeah, please. Please. Arun Kumar Das is the next person. No issue, sir. Yeah. Arun Kumar Das. Arun ji, you there? Arun Kumar Das ji. Arun Kumar Das. सर लगता है नाराज हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आइए। नहीं, अरुण कुमार दास जी थोड़ी थे, वो तो कोई और। अरुण कुमार दास जी क्वेश्चन था, सिंस मोर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स आर रनिंग नाउ इंक्लूडिंग पूजा स्पेशल्स, कैन वी हैव पैसेंजर अर्निंग्स डेटा टिल अक्टूबर एंड? डेटा सब रेल दृष्टि पे है। अरुण कुमार दास जी आएंगे तो उनको हम डेटा देते हैं, डेटा है मेरे पास, और ये रेल दृष्टि पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में डेली का डेटा हम डिस्प्ले करते रहते हैं। और अरुण कुमार दास जी ने पूछा है तो बता देते हैं कि अभी तक जो पैसेंजर से अर्निंग आई है वो 3,322 करोड़ की आई है, लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो करीब 90% कम है। तो केवल 10% नॉर्मल टाइम का जो है वो खाली 10% पैसेंजर अर्निंग से आया है। और इस कोविड की सिचुएशन से जैसा आपको पता है कि पैसेंजर ट्रेनें काफी दिनों से बंद है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ फ्रॉम न्यूज नेशन। सिद्धार्थ, यू देयर? सिद्धार्थ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे 2 सवाल हैं जी। एक सवाल तो ये है कि जब पैसेंजर ट्रेनों को फुल फ्लेज तरीके से कब चलाएंगे? जब भी बात आती है तो ये कोरोना की बात आ रही है। और दूसरा सवाल ये है, जब कोरोना की सेकेंड वेव की बात की जा रही है कि तो ऐसे में क्या एनटीपीसी एग्जाम हो पाएगा दिसंबर में, जिसकी तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। रेलवे जल्दी से जल्दी रेगुलर ट्रेनें चलाना चाहती है और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। कोरोना की सिचुएशन थोड़ी
अनिश्चितता सी बनी हुई है जिसको कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, और इसलिए एक एग्जैक्ट डेट बता पाना कि रेगुलर ट्रेन कब चलेगी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। और जैसे ही थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है ये कोरोना सिचुएशन, हम आपको जरूर बताएंगे। जहाँ तक एनटीपीसी परीक्षा की बात है, हमने तीन तरह की परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन क्वालिफाई किए थे, और 15 दिसंबर से हमने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये एक मुश्किल समय है, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए एक तो लंबे समय तक हमको करना पड़ेगा। सेंटर पे हमको परीक्षार्थियों की संख्या ऐसी रखनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाए। हमें उनके लिए स्पेशल ट्रेन इस तरह से चलाने पड़ेंगे कि सब लोग एक तरह से रिजर्व्ड एकोमोडेशन में ट्रेवल करके जाएं। तो एक ये चैलेंजिंग काम है, लेकिन रेलवे पूरी तरह से तैयार है, और 15 दिसंबर से हम परीक्षा शुरू करेंगे। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही है मिस्टर नारायण, आपकी आवाज नहीं आ रही। Rituparna, you there? Rituparna? Sir, I'm there. Yeah, please Ritu. speak. Yes, sir, I'm there. Ritu, good evening. Hi, sir. Sir, Hi. I just wanted a clarification. Did you say that 95% of the land in Maharashtra will be acquired in the next 1 month? Did you say that? Also, I wanted to know that because of the delay in land acquisition for this bullet train project, what will be the cost escalation? Can you repeat, Mr. Narayan? Can you repeat her question? Yes, sir. Her question is, sir, most of the things you already answered. It is what is the status of land acquisition of the bullet train project in Maharashtra? And the second part of it, what is the estimated cost escalation due to the delay in land acquisition? Okay, the land acquisition I have already mentioned. Total 66% land has been acquired, 86% in Gujarat. We are expecting in next 1 month the level of acquisition in Gujarat will reach around 95%. Maharashtra it is 22%, and we had a detailed discussion with the state government. We are anticipating that land acquisition in Maharashtra will also be expedited. As far as the variation in cost, this has to be worked out actually. Means basically escalation in the cost is not due to land acquisition, but yes, the project cost, it is a set procedure. The project costs are revised from time to time. So whenever the next revision will take place, and then we will come to know that what will be the revised cost. But as of now, we have not worked out the revised cost of the project. Next question is from Anil Kumar, News 18. Anil Kumar, you there? Yeah, Anil ji, namaskar. नमस्कार सर, मैं अनिल हूँ न्यूज 18 से। मेरा अनिल सवाल जी, ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं सर कि गुर्जर आंदोलन चल रहा है राजस्थान में, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, कई ट्रेनें जो कैंसिल की गई, तो उससे कितना रेलवे प्रभावित हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पंजाब से को लेकर के हम रेल मिनिस्टर ने एक लेटर भी लिखा था वहां के रेलवे की सुरक्षा संरक्षा को लेकर के, क्या पंजाब सरकार से कोई इसके लिए जवाब आया है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान में प्रॉब्लम हुई है उससे आज तक हमको करीब 31 ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी, 2 ट्रेन कैंसिल भी करनी पड़ी, और पंजाब में काफ़ी दिनों से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रेल ऑपरेशन है, ट्रेन ऑपरेशन है, इसमें जो संरक्षा जिसको सेफ्टी कहते हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं अपने जो भारतीय रेल के हमारे 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतने मुश्किल समय में 365 दिन पूरे एक हफ्ते दिन रात मेहनत करके जो ट्रैक मेंटेनेंस है और सिग्नलिंग का, ओएचई का मेंटेनेंस, कोच, लोको, इन सब का वो रख रखाव इस तरह से कर रहे हैं कि सेफ्टी का एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड बना हुआ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेल का जो ट्रैक है उसमें कंप्लीट कंट्रोल जब तक रेलवे का नहीं होगा और रेलवे उसको अपनी तरीके से मेंटेन नहीं करेगी तब तक उस पर सेफ ऑपरेशन संभव नहीं है। और इसलिए हमने
राज्य सरकार से ये अनुरोध किया है कि लॉ एंड ऑर्डर चूंकि उनका एक विषय है कि वो इंश्योर करें कि जो हमारा ट्रैक है और जो स्टेशन है वो पूरी तरह से उस पर कोई भी तरह से वो रेलवे के कंट्रोल में हो, ताकि रेलवे उसका रख रखाव करे और उस पर फिर अपना ट्रेन ऑपरेशन शुरू करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेन चलाने के लिए जो हमारा ट्रैक है, जो कि कंटिन्यूअस एक स्ट्रेच है, उसके एक एक चप्पे चप्पे को हमको मेंटेन करना होता है। एक तय किए हुए टाइम शेड्यूल के हिसाब से उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है। और आप इस बात को मानेंगे कि अगर एक जगह भी कोई समस्या आ जाए, डिसकंटिन्यूटी हो जाए या एक फिश प्लेट भी अगर गायब हो जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि पूरी तरह से वो ट्रैक और रेलवे स्टेशन को सिक्योर करें और वहाँ पे किसी भी अनऑथराइज व्यक्ति को ना आने दें। और जब इस तरह का एक स्थिति बनेगी उस समय ही रेलवे ट्रेन चला पाएगी। और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी मेंटेनेंस इस तरह से रखें कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे जब भी हमें ये आश्वासन मिल जाता है राज्य सरकार से कि हमारा ट्रैक और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड है और उस पर कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं है और नहीं आएगा, हम तुरंत रेल सेवा उसमें शुरू कर देंगे। तो हम राज्य सरकारों से समन्वय बनाए हुए हैं और जैसे ही हमें राज्य सरकार से ये एक तरह की सूचना मिलेगी कि हमारे रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड है और उस पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की आने की कोई संभावना नहीं है, भारतीय रेल तुरंत पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, पूरे मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तुरंत रेल ऑपरेशन, चाहे वो फ्रेट रेल ऑपरेशन हो चाहे वो पैसेंजर रेल ऑपरेशन है, वो तुरंत शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ANI निशांत। आप हैं निशांत? निशांत फ्रॉम ANI। हाँ, यस प्लीज प्रोसीड। नमस्कार सर, चेयरमैन सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आपने गुर्जर आंदोलन के बारे में बताया, जो ट्रेनों को डाइवर्ट किया, एक रिलेटेड क्वेश्चन है इससे कि पहले भी जितने भी एजिटेशंस होते रहे हैं उसकी वजह से रेलवे को ट्रेन के रूट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं। प्रोटेस्ट साइट पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जहां पर कि गुर्जर आंदोलन में रेल पटरियों को नुकसान सर सॉफ्ट टारगेट बनती रही है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है जिससे कि जो ये नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए कोई एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई नुकसान पहुंचाता है पब्लिक प्रॉपर्टी को तो उसे ही भरपाई करनी होगी। तो इसके लिए कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? दूसरा सर सवाल है मेरा स्पेशल ट्रेन को लेकर के, कुछ पॉलिटिकल नहीं है कि जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनमें नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले 25 से 30% ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। इन दोनों बारे में सर बता देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है और हम राज्य सरकार के साथ बिल्कुल समन्वय बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए रेल संरक्षा, जो रेलवे की सेफ्टी है, वो सर्वोपरि है। और जब तक राज्य सरकार ये हमको सूचना नहीं देती है कि रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड है और उस पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक हम उस पर ट्रेन नहीं चलाते हैं। और एक बार ये सूचना हमको राज्य सरकार से मिल जाती है कि ट्रैक सिक्योर है तो उस पर हम पूरी अपने मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उस पर हम चलाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसकी भरपाई होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि इस तरह का जरूर व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य सरकारों से हम इसके लिए समन्वय बनाए हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम देखें कि इस तरह की समस्या ना आए भविष्य में। और जो रेल की पटरियां हैं रेल चलाने के लिए होती हैं और ये हमको बिल्कुल सिक्योर्ड होनी चाहिए ताकि उस पर हम रेल चला पाए। आपका जहाँ तक दूसरा प्रश्न है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि
ये एक सेट सिस्टम है और अगर आप चाहें तो उसकी प्रतिलिपि आपको हम दिलवा देंगे। 2015 में ये निर्णय हुआ था कि जब भी कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी तो उसके कुछ फेयर स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जो स्पेशल ट्रेन हम चलाते हैं उसको चलाने के लिए दूसरी तरह की व्यवस्था करनी होती है, रखते हुए एक 2015 में निर्णय हुआ है और बिल्कुल जो 2015 का फेयर स्ट्रक्चर है स्पेशल ट्रेन के लिए वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। हमने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है और वो 2015 का जो भारतीय रेल का एक परिपत्र है उसकी कॉपी हम आप लोगों को जरूर दिलवा देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। संतोष ठाकुर अगला। संतोष ठाकुर जी नव भारत हैं सर। इनका प्रश्न ये था जो काफी बाकी पत्रकार भाईगढ़ भी पूछते रहते हैं कि सभी श्रेणी के पास को शुरू कर दिया गया है लेकिन सिर्फ पत्रकारों के लिए रियायती पास को अभी तक क्यों नहीं मान्यता दी शुरू किया गया है, इसकी क्या वजह है? पत्रकारों को कब से पास मान्य होंगे? आप आ गए संतोष जी? ओके, तो ये एक प्रश्न था सर इनका पहला। फिर सर पहले इसका जवाब देते हैं, फिर अगला प्रश्न काफी बड़ा है इनका। सर बताइए, अगला प्रश्न भी बता दीजिए। बिहार के उत्तरी जिलों में सफर का समय कम करने के लिए गोरखपुर, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, जयनगर रेल लाइन पर रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव था। इस लाइन पर रेलगाड़ियां शुरू होने से दिल्ली, मुंबई से उत्तर बिहार का सफर कम से कम 4 घंटे कम हो सकता था। रेल लाइन भी बनकर तैयार है लेकिन इस पर रेलगाड़ियां शुरू नहीं हुई है, इसकी क्या वजह है? कब तक शुरू होंगी? और तीसरा रामायण सर्किट के था सर इनका। रामायण सर्किट के तहत दिल्ली, अयोध्या, गोरखपुर, सीतामढ़ी, जयनगर, नेपाल से के जनकपुर के बीच की राजधानी शताब्दी की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है इससे भारत और नेपाल के बीच मैत्री और प्रगाढ़ होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने भी इसको लेकर इच्छा जाहिर की है। क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया है? कब से ट्रेन चल सकती है? 3 प्रश्न है सर। अच्छा, संतोष जी है नहीं, बट संतोष जी को ये सब प्रश्न पूछने के लिए तो सर संतोष जी हैं आप? नहीं है। बहुत धन्यवाद। देखिए, जो पहला प्रश्न है पास का, वो मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया था कि ये कोविड के समय एक हमने केवल जो बीमार लोग हैं जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं और भी जो डिजीज जिनको है उनको एक अलाउ किया था हमने, और एक स्टूडेंट्स उस समय बहुत अपनी जगह से घर जा रहे थे तो उनको अलाउ किया था। बाकी सारी कैटेगरी को हमने नहीं अलाउ किया। उसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, उसमें गैलेंट्री अवार्ड विनर भी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और जब भी हम रिस्टोर करेंगे तो पत्रकार भाइयों का पहले रिस्टोर करेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक कोविड के समय में हमने निर्णय लिया था उसके बाद से कोई निर्णय बदला नहीं है, और केवल जो पेशेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं अभी उन्हीं को कंसेशन उस समय अलाउ किया था और वही कंटिन्यू कर रहा है। जो इनका दूसरा और तीसरा प्रश्न था वो बिल्कुल सही प्रश्न है। वो लाइन तैयार हो गई है, उस लाइन पे कुछ ट्रेनें चल रही हैं अभी, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें चलने से कुछ डिस्टेंस कम हो जाएंगी। बिल्कुल, जब ये नया टाइम टेबल आएगा, जब रेगुलर ट्रेनें इंट्रोड्यूस होंगी तो उस पर जरूर हम लोग विचार कर रहे हैं कि वहाँ पे उस रूट से कुछ ट्रेनें चलाई जा सकें जिससे कि कुछ समय कम होगा। तीसरा जो इनका क्वेश्चन था नेपाल का, जो जनकपुर से कनेक्टिविटी का, जो नेपाल का पोर्शन है ट्रैक का, वो ट्रैक तैयार है। उसकी फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग नेपाल सरकार द्वारा कराई जा रही है। उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का वो नेपाल सरकार इंतजाम कर रही है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू हम लोग नेपाल सरकार के टच में हैं, और जब वो लाइन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो उस पर ट्रेन चलेगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक डेमू का रेक भी वहाँ नेपाल भेजा है, तो वो लाइन अभी ट्रायल और टेस्टिंग में है। जैसे ही ये लाइन की ट्रायल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सारे इंतजाम पूरे हो जाते हैं तो उस लाइन पे ट्रेन चलाई जाएगी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और आया है बिफोर जी बिजनेस वाले से भी पूछ वाज देयर सर। सर एक प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ ट्रेन सर्विस इन पंजाब बोथ गुड्स एंड कोचिंग नंबर्स, डू वी हैव द फिगर्स? सर ऐसे पूछ रहे हैं। क्या फिर से दोबारा पूछिए? पंजाब में ट्रेन रुकने की वजह से कि हमारा एक्सपेक्टेड लॉस इन रेवेन्यू क्या हुआ है
in goods and passenger? Do we have this estimate? उसका अभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया है कि कितना लॉस हुआ है. अभी हम उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं. हमारा ध्यान पूरी तरह से इस पे है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए. और ये फेस्टिवल सीजन है, इसमें काफ़ी लोग यात्रा करना चाहते हैं और रेलवे ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही राज्य सरकार से हमको ये सूचना मिलती है कि रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से अनाधिकृत व्यक्तियों से खाली हो गया है और उस पर कोई बाधा नहीं है, भारतीय रेल तुरंत उस ट्रैक का मेंटेनेंस प्रोटोकॉल के तहत इंस्पेक्शन करके कम से कम समय में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलाएगी. तो अभी हमारा पूरा ध्यान है और राज्य सरकार से हम बात कर रहे हैं. पूरी तरह से हमारे जो लोकल रेलवे अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के लोकल अधिकारियों से समन्वय बनाए हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम उस पर पैसेंजर और गुड्स ट्रेन शुरू कर सकें ताकि सबको उसका लाभ मिल सके. जहां तक लॉस का आकलन है वो अभी हमने किया नहीं. जी बिजनेस, आप प्रश्न पूछ रहे थे, अब आप पूछ सकते हैं. जी बिजनेस, आप हैं? जी बिजनेस से, आर यू देयर? ओके sir, thank you for giving Thank your you very very precious time to us, Thank to you the very media, much. and you very gracious in pleasure answering talking. all. It was pleasure talking to everyone, and it is always pleasure to interact with friends from media. So thank you very much for joining us here. Thank you. Thank you, sir. Thank you, friends from the media. I'm just sending the presentation जो सर ने दिया था. Thank you.